My dear students, we were discussing about applications of Gauss's law. हम Gauss's law की applications के बारे में स्टडी कर रहे थे. इससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने कोई स्ट्रेट वायर लिया था जिसपे चार्ज प्लेस किया हुआ था. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट. तो thin sheet means two dimensional distribution of charge. Today we are going to discuss about three dimensional distribution of charge. Means आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. शेल मीन्स इट इज ए हॉलो स्फीयर. तो गॉसिस लॉ या गॉसिस थ्योरम का यूज करके हमने हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर. इस तरह से हमारे पास हॉलो स्फीयर दिया है and let it is capital R the radius of this hollow sphere. ठीक है, इसके ऊपर चार्ज प्लेस किया हुआ है like this. Let this is a positive Q charge. So positive Q charge is uniformly distributed on the surface of the sphere. So first of all we will find out the electric field intensity on the surface of this चार्ज्ड हॉलो स्फीयर. तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर. तो हमारे पास जो हॉलो स्फीयर दिया है इसके सरफेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके देखनी है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस किया है. अभी हमने इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो भी किसका यूज करके, गॉसिस लॉ का यूज करके. देखिए गॉसिस लॉ का यूज करना हो तो हमें चाहिए होता है एक क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर हमें this is the surface point of observation. तो this surface is already a closed surface. तो यहां हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए हम सीधे ही बोलेंगे ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ. गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल है that is equals to q upon epsilon naught, or we can say it is E ds cos of theta and it is equal to q upon epsilon naught. Say it is equation number 1. ठीक है, here it is ds. तो let here it is surface area, elementary area ds. तो आपको पता है एरिया के पास जो एरिया वेक्टर होता है that is perpendicular to the surface area. So here it is vector ds. ठीक है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं because this point is at a distance capital R. Clear? Now positive charge is there, तो electric field कैसा होगा, radially outwards. So it means E vector and ds vector both are parallel to each other. They are in same direction. So we can say here E vector is parallel to ds vector. Therefore, theta is equal to how much? That is 0 degree. So from first equation we will find out the value. So equation 1 implies it is E ds cos of 0 degree is equal to q upon epsilon naught, or we can say it is E into ds, surface integral of ds. It is equals to q upon epsilon naught. Say it is equation number 2. Now here it is ds integration for whole sphere, whole surface, and this is the electric field intensity जिसको हमें find out करना है. अब आपको पता है this is the Gaussian surface and here we need the value of this complete surface. So we can say here this ds for complete surface is 4 pi r square.
here is the radius capital R of this closed surface. So we are writing there 4 pi r square. Now we will substitute this value in equation number 2. So therefore equation 2 implies put this value. So here it is E into 4 pi r square and it is equals to Q upon epsilon naught, or we can say this E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. Here it is. So this is the magnitude of electric field intensity on the surface of this hollow charged sphere. ठीक है, यहां से हम देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं this E is inversely proportional to r square. हम इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. So vector form is there, so we can write it as E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square, clear, into some unit vector. So unit vector you can write here, it is small r unit vector, n unit vector, capital R unit vector. So it can be written like this. ठीक है जी, समझ गए. तो ये आ गया हमारे पास. वैसे यहां पर हम कैपिटल R मान के चल रहे हैं, we can write it as capital R unit vector, no problem is there. समझ गए बात को. So this is the electric field intensity on the surface of this uniformly charged hollow sphere. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द hollow sphere. hollow sphere से बाहर कितना होता है. So this is second part, outside the hollow sphere. तो hollow sphere के बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E outside we have to find out. So for that purpose let us consider this is the hollow sphere. ठीक है, and capital R is the radius of this hollow sphere. इसके ऊपर वही चार्ज है पॉजिटिव Q जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं. So positive Q charge is placed on its surface. Now here we have to find out the value of electric field intensity outside the surface of the sphere. So here it is the point of observation where we have to find out the electric field intensity, and let this point of observation is at distance, it is small r distance from its center. तो गॉसियन लॉ का यूज करने के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए, मींस जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं. So first of all we have to construct a गॉसियन सरफेस passing through this point of observation, or we can say construct a Gaussian surface of radius small r. ठीक है, then according to Gauss's law, तो गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना है, वही जो हमने यहां किया बिल्कुल ऐसे ही होना है. कैपिटल R की जगह हम स्मॉल r राइट करेंगे, बाकी मेथड सारे का सारा सेम है. So we can write it as E vector dot ds vector equals to Q upon epsilon naught, or we can say it is E ds cos of theta equals to Q upon epsilon naught. Say this is equation 2 and here it is equation number 3. Again we will see this angle theta, this is the angle between electric field E vector and ds vector. So again here it is some elementary area ds, and elementary area का जो वेक्टर है that will be perpendicular to it, and E vector is positive charge के लिए radially outwards. So again E vector is parallel to ds vector. So here E vector is parallel to ds vector. इसका मतलब है that is theta is equal to 0 degree. और अगर theta 0 degree होता है तो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. So equation 3 implies it is E into ds and it is equal to Q upon epsilon naught. And you know very well this here it is integration of this complete surface, it is ds. ds क्या है, गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री पार्ट. देखिए ये था पहले गॉसियन सरफेस, अब की बार गॉसियन सरफेस कहां है, दिस इज द गॉसियन सरफेस. पहले गॉसियन सरफेस का रेडियस था कैपिटल R, अब की बार गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r. ठीक है, थोड़ा सा चेंज आना है. तो हियर this integration of ds is equal to 4 pi small r square. उधर थी हमारे पास 4 pi कैपिटल R square like this. ठीक है,
क्योंकि वहां रेडियस गॉसियन सरफेस का कैपिटल आर था और यहाँ रेडियस गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर है। तो जनरली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे पास ds लिखा है, दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस पहले ये था, अब की बार गॉसियन सरफेस इसके बाहर है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां पर जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देयरफॉर इक्वेशन 4 इंप्लाइज, तो यहां से भी आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. This is the magnitude of electric field intensity, and from here we can say E is inversely proportional to R square. पहली बात, वेक्टर फॉर्म में राइट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square into यूनिट वेक्टर R, ठीक है। तो इसका मतलब है E is inversely proportional to R square। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हॉलो स्फीयर के इनसाइड हमें देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, दैट इज द C पार्ट, इनसाइड द हॉलो स्फीयर। तो जो हॉलो स्फीयर हमारे पास दिया है उसके अंदर देखना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, वो भी कैसे, बाय यूजिंग दिस गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम। तो ये है हमारे पास वही, दिस इज द हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। अब की बार बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो जो पॉइंट P है वो कहां है, दैट इज इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर, इनसाइड। तो देखिए इनसाइड के लिए हमें वही देखना पड़ेगा सारा पॉइंट। यहां स्मॉल r मिल लीजिए, ये आ गई कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसके लिए एलिमेंट्री एरिया है ds। लेकिन यहां पर एक खास बात है, यहां पर अगर हम देखें तो कहीं पर चार्ज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो Q इनसाइड इक्वल्स टू 0। तो अगर Q इनसाइड इक्वल टू 0 है तब क्या होगा फिर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, Q इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना था, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब की बार Q कितना है, 0 है, तो इट इज इक्वल्स टू 0। इट मींस EDS इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज दिस E इज इक्वल टू 0। तो E कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, E इनसाइड कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द हॉलो स्फीयर। क्लियर। अब देखिए हम इन सारी तीनों केसेस को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू मेक ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and this distance small r, तो देखिए let us consider we are having a sphere। जो स्फीयर दिया है वो इस तरह से, ठीक है, ये है इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R। तो आप देखें तो इसके जो इनसाइड मींस सेंटर से लेके सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, 0। मींस ये वाला जो पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्मॉल r कितना था, कैपिटल R, और इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मींस ये ग्राफ इस तरह से चला गया आगे तक। अब देखिए सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। सो हियर इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन, कहां पर मैक्सिमम होता है, सरफेस ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर। यहां से ग्राफ चलता है इस तरह से, बिकॉज E is inversely proportional to R square। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाएगा जैसे जैसे R की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
डिक्रीज होती जाएगी। E is inversely proportional to R square। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड होलो स्फीयर एंड इट डिक्रीजेस आउटसाइड द स्फीयर। जैसे जैसे हम इस होलो स्फीयर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट Gauss's application, Gauss's law application। ठीक है, after this we will discuss for a solid sphere in our next lecture। So till that, bye।